Hello everyone, welcome to APTI PLUS Academy for Civil Services. This is a special video series on FCA, stand for Fortnight Current Affair, where I'll be discussing the top 10 news of the fortnight and we'll try to cover the news in a comprehensive manner that can help you in prelims and mains examination. And this series is dedicated to the aspirants who are preparing for the civil services examination, specifically for the prelims and mains. So this is Fortnight 2, which I am discussing. And the coverage of the FCA include the Hindu, the Indian Express, and from the PIB. So let's get started with the topic first. That what is the discussion? This list of 10 topics that I'll be discussing today. So the first topic is India draft Arctic policy. Second, innovation index report. Shram Shakti portal. COVID-19 performance index. Cyber insurance policy. The sixth is 35th Pragati meeting. Seventh is Indo-French joint exercise. Eighth is India-Nepal joint commission meeting. And the ninth topic is framework for the regulation of Nbfc. And the last topic for today's fortnight, that is fortnight 2, would be India Justice Report 2020. So we'll see each of the topic one by one, and the analysis of the news would be comprehensive so that they can help you in any part of the examination. So let's get started. The first topic is India draft Arctic policy. This was there in the news, and talking about its relevance, it can be very important for your general studies paper 3, very basically science and tech portion is concerned, and also it can contribute directly in the prelims examination. So India has recently unveiled the new Arctic policy that aims to expand the scientific research, sustainable tourism, and exploration of mineral oil gas in the Arctic region. So this is one of the milestone that India would be achieving in the Arctic region. And this is not for the first time that India is launching a program or an initiative in the Arctic region. India already had its first scientific expeditions to Arctic in 2007, right? Now talking about the other part, that which would be the nodal body. For examination perspective, it is very important that you understand what is a nodal body. So Goa-based National Center for Polar and Ocean Research would be the least scientific research in the nodal body. तो ये जो नाम है National Center for Polar and Ocean Research, इसको आप याद रखिए, कई बार examination में direct इसके बारे में पूछी जाएगी, and you can read more about this to the official page as well. Now the body will coordinating among the various scientific bodies, जहाँ पे they would promote domestic scientific research by expanding earth sciences, biological sciences, geosciences, climate change. उसके अलावा जो space related programs है, dove-tailed and Arctic imperatives जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास करके ऐसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, या जितने भी एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे रिसर्च बेस्ड ओशियनोग्राफी की स्टडीज़ की जाती है, वहाँ पे दे वुड बी taking the leap of this. Now about the Arctic region, if you're discussing the Arctic policy, it is very important कि आपको ये पता चले कि Arctic region कहाँ पे. I will show you a map as well. So Arctic is a polar region that is located in the northernmost part of the earth. I can show you a map here. So this is the complete region. This is the Arctic region, right? First we'll discuss, then we'll come to this map. Now the Arctic consists of Arctic oceans, adjacent sea, part of Alaska, Canada, Finland, Greenland, Iceland, Norway, Russia and Sweden. So make sure आप ये countries के नाम जरूर याद रखें. कई बार UPSC which among the following is or not the part of the Arctic Ocean पूछ सकती है आपसे. Now land with the Arctic region has seasonally varying snow and ice cover. Now coming to this map, this will show you the Arctic region में जो countries हैं. This is the Arctic Circle. This is the Arctic region in the North Pole. This is Arctic Ocean, Finland, Sweden, Norway, Iceland, Greenland, Canada, Russia and Alaska. So this is from the encyclopedia. I've taken the map. आप इसको जरूर screenshot ले लें. If you already have this, make sure आप इसको learn कर लें. And the question can be asked from north to south, or from east to west, right? So from west to east, you have to learn accordingly. Now objective of the policy, अगर बात करें क्या objective है इस policy की, so promoting the scientific study in the Arctic region. जो Arctic region है वहाँ पे curriculum based earth sciences, biological sciences, geosciences के जितने भी Indian universities में पढ़ाई जा रही हैं, उनमें चीज़ों को और advance किया जाना चाहिए. Planning exploration, जहाँ पे एक effective plan बनाई जाएगी Arctic related program for mineral oil and gas exploration in petroleum research institutes in the India.
Now, talking about the other part, that it will also include the tourism in the Arctic, encouraging the tourism and hospitality sector, building a specialized capability of awareness by engaging with the Arctic enterprises. और अगर Arctic research की बात करें, so this will help India scientific community to studying the melting rate of the third polar Himalayan glacier. जिस तरह से अगर Himalayan glacier की बात की जाए, climatic changes is another one of the important significant factor for the Himalayan glaciers, but और भी कैसे कारण हैं वो इस स्टडीज़ में पढ़ाई की जाएगी. जो जितने भी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हिमालयन ग्लेशियर या फिर स्पेस पे काम कर रही है या फिर आर्टिक रीजन पे काम कर रही है, उनकी चीज़ों में यहाँ पे फ्रेश वाटर रिजर्वायर कितने हैं, आउटसाइड कितने हैं, जोग्राफिकल पोल्स में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें दिस वुड बी द रिसर्च एक्टिविटीज़ वुड इंक्लूड दिस एज वेल, राइट. सो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें जो रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो पार्ट इंक्लूडेड है उसको भी ध्यान रखें. Now coming to the India Innovation Report, this is Innovation Index Report 2020. This has been recently released by the Niti Aayog. So जो भी organizations को release करते हैं उसके नाम ज़रूर याद रखें. So Niti Aayog has recently released India Innovation Report 2020 and this exercise was initiated in 2019 जहाँ पे जो overall parameters रखा गया था इसको parallelly किया गया था Global Innovation Index के जैसे. जिस तरह से Global Innovation Index निकलती है उस तरह से इंडिया में नीति आयोग Innovation Index Report निकालती है. Now in 2015 India ranked 81 among 141 countries. जो हमारी जो GII में performance थी 2015 में this was 81. Now India has improved its ranking and presently we are ranked at 48 among 131 countries. Now कुछ indicators हैं, कुछ important indicators हैं जो कि इस innovation index report में रखी गई है. That include level and quality of education, especially in research. उसके बाद कितने स्टूडेंट्स हैं जो PhD के हैं और बच्चों की जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंगली भी रेट की जाती है. इनरोलमेंट इन द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो भी स्टेट्स में, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स है वो स्टेट को रैंक करेगी, राइट. तो हर स्टेट में ये इंडिकेटर्स चेक किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्टेट को रैंकिंग दी जाती है. So the number of high skilled professionals, investment in research and development, FDI inflows. उसके अलावा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने हैं, नॉलेज intensive employment, number of patents and trademark application filed, business environment and satisfaction, safety and legal environment among the others. So these are some of the important indicators. उसके accordingly state को category किया गया, categorize किया गया top या worst performance में. So these are the category of the state. अगर बात करें innovation index की तो they are divided into 3 categories. First है major states, उसके बाद union territories, उसके बाद hill and northeastern states. If you talk about the major state, here Karnataka has ranked among the top, right? सबसे ज़्यादा innovative state जो नीति आयोग ने rate किया है according to the India Innovation Index. So this is Karnataka. I will show you a map of the complete states. Now Karnataka topped with 42.5% overall में. And they have high number of venture capital, registered GI जो भी geographical informations है या जो geographical indications है, GI stand for geographical indications, ICT export, FDI inflows, इसमें कर्नाटका की ranking 1 है. Maharashtra is the second state followed the scale of 38. Bihar has the least number, that is 14. Now I will show you a map. This is a graph which will help you understand कि कौन कौन से state की क्या performance है. ये हम बाद में देखेंगे. First we'll see this. Karnataka 42.50 followed by Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana and Kerala. ये जो top 5 states हैं उनको आप जरूर ध्यानपूर्वक देख लें. And the last state here is Punjab, although we know that जो सबसे least performer है वो यहाँ पे बिहार है with 14.5. Now talking about the union territories की अगर बात करें तो ओवरऑल जो भी इनोवेशन इंडेक्स आई है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, उसमें सबसे हाईएस्ट जो रैंकिंग है वो दिल्ली की है. यूनियन कैटेगरीज में वो टॉप है, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखोगे तो दिल्ली की जो नंबर है दैट इज 46.60. दिस इज अमॉन्ग द टॉप जितने भी हैं, चाहे मेजर स्टेट्स आप कंपेयर कर लें या फिर नॉर्थ ईस्टर्न से कंपेयर कर लें, दिल्ली ओवरऑल में टॉप है, बट अपने यूटी में भी दिल्ली टॉप है, राइट. 46.60 है, यहाँ पे 42.50. So Delhi has topped the union territories, highest number of trademark patients along with the establishment of startup companies और जो financial year में चीजें बढ़ी हैं उसके accordingly. And Delhi has the highest index on the country scoring 46.6 और लक्षद्वीप में सबसे कम that is lowest 11.7, right? और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें so हिमाचल प्रदेश has the highest rank of 25. So ये रैंकिंग बिल्कुल आप ध्यान रखें. हिमाचल is 25, last is Mizoram, here is Goa.
So this is the ranking. This was already there in the newspaper. If you have read Hindu, आपको ये आपकी ये पास होंगी ये चीज़ें. अगर नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं. Now coming to the other part, that is what was the framework, basically talking about the framework of the index. So framework of the index include global consider parameter that measures innovations, कितने innovations किए गए हैं in terms of percentage of GDP spent on the research and development while keeping them specific to the Indian economy. जो GDP की जो spending है innovations में research activities में वो कितनी ज़्यादा है, ये framework index की सबसे बड़ी framework है. And it's also spent around 0.7% of its GDP on research and development, much lower than top spender, जहाँ पे इजराइल जो कंट्री है वो 4.95% स्पेंड करती है और हमारी कंट्री सिर्फ 0.7% स्पेंड करती है रिसर्च और डेवलपमेंट में. तो इस बार के बजट में ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा. इट वुड बी अगेन वेरी पाइवोटल हाउ मच अमाउंट और हाउ मच एलोकेशन इज देयर इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Now coming to the Shram Shakti portal, this is again a portal for beneficiary of the migrant worker. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसको रिलीज़ किया है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज़ लॉन्च दिस श्रम शक्ति पोर्टल और ये एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट करेगी. एक पोर्टल है जहाँ पे स्मूथ फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर द माइग्रेंट वर्कर में मदद मिलेगी. सो दिस वुड बी कलेक्टिंग द डेटा सो दैट सपोर्ट सिस्टम कैन एस्टैब्लिश फॉर द माइग्रेटेड पीपल. तो ट्रेनिंग मैनुअल की अगर बात करें श्रम शक्ति, इट इज़ ऑल्सो नोन टू बी लॉन्च्ड फॉर द माइग्रेंट वर्कर. Now it has launched to collect the data for the tribal worker और उसको लिंक करेगी existing welfare scheme से. So once the data is there with the government, they can adequately formulate a policy that would help the migrant people, right? Now क्या क्या objectives हैं, अगर objective की बात करें श्रम शक्ति पोर्टल की. So various data would be received via Shram Shakti that include demographic profile, किस तरह की demographic profile है, लोग कहाँ से आते हैं, उनके livelihood options कितने बचते हैं, skill mapping की जाएगी कि कौन individual कितना skill है, उसके accordingly उसको काम दी जाएगी और migration का जो pattern है उसको note किया जाएगा. Now it would also empower the worker who are generally migrated in search of employment and income generations. Now it would also help in national and state government in formulation of objective strategy, discussion of welfare migrant both for the destination and the states. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें एड्रेस की गई है इस पोर्टल के थ्रू, लाइक जो ट्रैफिकिंग है, वेज हैरेसमेंट की जो इश्यूज़ है या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्डियस एट वर्क प्लेस है, इन सारी चीज़ों को भी बहुत ही ध्यानपूर्वक इसके ऑब्जेक्टिव में इस पोर्टल में नोट किया जाएगा. Now this portal will link the migrant population with existing welfare scheme under the आत्मनिर्भर भारत, जो कि रिसेंट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया है. उसमें भी जो बेनिफिशरीज हैं उनके डेटाज को इस स्कीम में भी लिंक किया जाएगा. ना उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जो ऑलरेडी चल रही है. तो प्रधानमंत्री वन धन योजना, इट इज़ अ मार्केट लिंक ट्राइबल इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे क्लस्टर्स पे जो ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई गई हैं. और जो पूरा एम है इस तरह का जो कम्युनिटी बनाने का, जहाँ पे माइनर फाइबर प्रोड्यूस हैं या फिर सेंट्रिक पर्पस वंधन विकास केंद्र हैं, उनको प्रेमोडेंटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स पे डोमिनेट कराया जाए और उसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स है ट्राइबल लोगों को मिल पाए. ऐसी दो और स्कीम्स है, अशीम पोर्टल और NMIS डैशबोर्ड. तो अशीम पोर्टल जो है दैट इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरियल, और ये आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो मैपिंग है असीम, उसकी आप असीम की फुल फॉर्म देख लें. दिस इज आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयर मैपिंग. तो ये लोगों को मदद करेगी स्किल पीपल को फाइंड करने में, उनको अलग से अपॉर्चुनिटी देने में, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को आगे ले जा सके. और ऐसे कई वर्कर हैं जो कि वंदे भारत मिशन से फॉरेन से इंडिया आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्वदेश स्किल कार्ड. उनको स्वदेश स्किल कार्ड मिलेगा और वो अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे अशीम पोर्टल में, सो दैट दे कुड हैव जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल. नाउ NMIS डैशबोर्ड की अगर बात करें, दिस इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. उन्होंने भी एक ऑनलाइन डैशबोर्ड क्रिएट किया है जहाँ पे नेशनल माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाई जाएगी. ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगी, डेटा कलेक्ट की जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर को एक इंटर स्पीड कम्युनिकेशन फैसिलिटेट की जाएगी इन मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर टू द नेटिव प्लेसेस. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द माइग्रेंट वर्कर. नाउ कमिंग टू द अदर टॉपिक, दैट इज COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहाँ पे पहली बार इंडिया में इस तरह के इंडेक्स आई हैं. दिस इज परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड दिस वाज रिलीज रिसेंटली. अगर बात करें
कंपाइलेशन की कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने इसकी स्टडी की है? सो दिस इज लॉवी इंस्टीट्यूट। ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी थिंक टैंक है जिन्होंने जो मेजर्स बताए हैं किस कंट्रीज ने पेंडेमिक में कैसे परफॉर्म किए, क्या परफॉर्मेंस रही उस कंट्री की ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक। आई मीन पेंडेमिक इज स्टिल गोइंग, बट जो पीक टाइम थी फ्रॉम टॉकिंग अबाउट अप्रैल टू अक्टूबर और अप्रैल टू सितंबर, उस टाइम पे क्या परफॉर्मेंस रही कंट्री की, तो इस जो लॉवी इंस्टीट्यूट है इसने रेट किया है। Now, the institute look into the account of impact of the geographical, political system, economical development and assessing the outcomes. तो कुछ इंडिकेटर्स थे इस इंडेक्स की। सो 6 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। यू शुड नो ऑल द इंडिकेटर्स, इट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट इंडिकेटर दे हैव यूज्ड इज द कंफर्म केसेस, सेकंड इज द कंफर्म डेथ, थर्ड कंफर्म्ड केसेस पर मिलियन पीपल, पर मिलियन पीपल कितने केसेस हैं, फोर्थ इज कंफर्म डेथ पर मिलियन पीपल, फिफ्थ cases as the proportion of the test and the last is test per 1000 people। तो कितनी टेस्टिंग की गई है, कितनी एडिक्वेटली टेस्टिंग की गई है, कैसी फैसिलिटीज थी, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली हर कंट्रीज को रेट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं which among the following countries were the top performer। So New Zealand is a country that has topped among the ranking, followed by Vietnam, Taiwan, Thailand and Cyprus। उसके बाद अगर बॉटम कंट्रीज की बात करें तो ब्राजील इज द कंट्री विच इज अमॉन्ग द बॉटम साइड, सबसे लोवेस्ट रैंकिंग ब्राजील की है। उसके बाद यूएसए, दैट वाज द 50th वर्स्ट परफॉर्मर इन द कंट्री, जिसकी रैंकिंग 94th है आउट ऑफ 98, राइट। तो बात करें साउथ एशियन कंट्रीज की, आई विल टेल यू अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस एज वेल। सो पहले साउथ एशिया की बात कर लेते हैं। श्रीलंका इज द बेस्ट परफॉर्मर अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज, जिसकी रैंकिंग 10 है। While Maldives was as 25, even Pakistan has performed better than us। बट उसका एक रीज़न है पाकिस्तान का बेटर परफॉर्मेंस का, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड के केसेस उतने ज़्यादा नहीं थे। नेपाल इज अगेन अ कंट्री विच हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग ऑन 70, बांग्लादेश 84। और जो इंडिया की रैंकिंग है परफॉर्मेंस इंडेक्स में इन टर्म्स ऑफ जो कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग है 86। सो दिस इज अमॉन्ग द 98 कंट्रीज। और टोटल कंट्रीज जो पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया की रैंकिंग 86 है अमॉन्ग द 98 कंट्रीज। तो जो लोवी इंस्टीट्यूट है उन्होंने 98 कंट्रीज को कंसिडर किया था फॉर दिस। एंड एट 24.3% इंडियाज एवरेज वाज लोअर देन द रीजनल बिलोंगिंग टू द एशिया पैसिफिक, वेयर 58.2 वर रैंक फॉर द रीजन वाइज इवैल्यूएशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली कंट्रीज थे जो आपको याद होना चाहिए, बिकॉज एनी टाइम अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Now coming to the cyber insurance policy, this was again there in the news and this is also very important for your essay paper as well। essay में भी कई बार इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। Now the committee was set up by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, जिसको IRDAI के नाम से भी जाना जाता है। So they have introduced a cyber insurance policy। और अगर साइबर रिस्क की बात करें, दिस इज कॉमनली डिफाइंड एज एक्सपोजर्स टू हार्म द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रीचेस और अटैक फ्रॉम द इंफॉर्मेशंस, राइट। तो कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है फॉर द पॉलिसी होल्डर इन टर्म्स ऑफ द साइबर क्राइम, बिकॉज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स दैट इज देयर विद द पॉलिसी होल्डर नीड टू विद देम ओनली। और अभी जिस तरह से स्पाइंग हो रही है, फॉल्स कॉल आते हैं, फेक कॉल्स आते हैं, तो कई इन्फॉर्मेशंस इधर उधर हो रही है। तो देखते हुए उस चीज़ों को IRDA ने एक इनिशिएटिव लिया है जहां पे जो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको इंक्लूड किया जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट यूजर इन इंडिया, यू नीड टू नो दिस एज वेल कि कितनी लेंथ एंड ब्रेथ इंडिया में कवरेज है इंटरनेट यूजेस की। तो कमिटी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इंटरनेट यूजर्स इज एस्टिमेटेड अराउंड 700 मिलियन लोग जो है इंटरनेट यूज करते हैं इंडिया में। एंड इंडिया वाज रैंक्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट वर्ल्ड वाइड इन 2019, राइट, कमिंग ओनली आफ्टर टू चाइना। तो वर्ल्ड में नंबर 1 चाइना है, सेकंड नंबर इंडिया की आती है। And the number of internet user is estimated to rise both in the urban as well as rural area। So इंडिया में अगर आप पैरेलली बात करो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया की, तो जो ओवरऑल कवरेज है इंटरनेट की वो पैरेलल चल रही है। ऐसा नहीं कि अर्बन बहुत ज़्यादा आगे है तो रूरल पीछे। रूरल इज ऑल्सो ट्राइंग टू कोप अप इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इंटरनेट यूजेस एंड इट्स कवरेज। ना कुछ रिकमेंडेशंस दी गई है, RADA की जो कमेटी बनी थी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। सो फर्स्ट इज साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी करेंटली अवेलेबल टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल रीजनेबली वेल। और ये भी कहा गया कि देयर आर सम एरियाज दैट प्रोडक्ट एंड फीचर्स दैट प्रोसेसेस नीडेड टू इम्प्रूव। और साइबर रिस्क की अगर बात करें, दे आर डायनेमिक इवॉल्विंग। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात करें, दे आर गुड आइडिया दैट एबल टू एड्रेस द इमर्जिंग रिस्क लाइकली टू द
लिमिट इनोवेशंस। सो साइबर रिस्क को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरी सेक्टर। कई बार गवर्नमेंट की साइट्स या फिर आपने प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर अकाउंट्स भी देखे होंगे, वो भी हैक हो गए थे। दैट वाज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाए। तो टॉकिंग अबाउट सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि ऑलरेडी साइबर को लेकर के चल रही है, साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। सो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव 2018 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जहां पे साइबर क्राइम, बिल्डिंग कैपेसिटी, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडवाइजर्स बनाए गए हैं जिसको सिस्को CISO भी कहते हैं। एक फ्रंट लाइन IT स्टाफ होंगे विद ऑल गवर्नमेंट स्टाफ्स एंड डिपार्टमेंट। So apart from the security personnel or deployment of security personnel in the building, now we are at the stage in the 21st century जहाँ पर cyber security भी equally important है। Now नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि स्कैन करेगी इंटरनेट ट्रैफिक को, किस तरह से जो कॉम्बिनेशन की मेटा डेटा होती है उसको कंसिडर करेगी, उसको स्कैन करेगी, एंड दे वुड बी कमिंग अप टू डिटेक्ट टाइम, जो रियल टाइम साइबर थ्रेट्स है उसको मॉनिटर करेगी। ना कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है साइबर स्वच्छता केंद्र। 2016 में इस प्लेटफॉर्म को लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड देयर एम इज टू क्लीन द कंप्यूटर एंड डिवाइसेस विदाउट वाइपिंग ऑफ वायरस एंड malwares. Information Technology Act 2000. This act regulates the computer system, computer network, and also the data information in electronic format. Right? These are some of the important government initiatives with regards to the cyber crime और जो cyber policy उसकी security के लिए। 35 प्रगति मीटिंग which was recently held, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली चेयर्ड द 35 एडिशन ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जिसको प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके जनरल स्टडीज के पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसे लिख रहे हैं तो आप इस तरह के फोटो पॉइंट यूज़ कर पाएंगे। सो द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज अ बेस्ड ऑन मल्टी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा। What is प्रगति? Because we are discussing, तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। So this is a communication technology platform, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी, और इसका जो पूरा एम है टू टाइमली इम्प्लीमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उनको। Now it was been designed by the Prime Minister Office, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट थी फ्रॉम NIC, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। तो प्रगति प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये बंडल्स 3 लास्ट टेक्नोलॉजीज से काम करती है, जैसे डिजिटल डेटा मैनेजमेंट हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या फिर जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजीज हैं। ये इसके कुछ कोर यूनिक बंडल्स हैं जिसके लेटेस्ट पार्ट पे ये काम करती है, एंड दीज ऑल्सो बेनिफिट द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ इट इज़ अ 3-tier सिस्टम जहाँ पे PMO, यूनियन गवर्नमेंट के जो सेक्रेटेरिएट्स हैं, जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उनके सेक्रेटेरिएट्स हो गए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट्स हो गई, उसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरीज के ऑफिस होते हैं स्टेट में, या फिर जो CMO के ऑफिस होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑफिस होते हैं, उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करेगी 3-tier सिस्टम के अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रगति मिशंस के जो प्रगति प्लेटफॉर्म लाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज द ग्रीवांस रिड्रेसल, सेकंड इज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड थर्ड इज project monitoring. So these are some of the important object of this Pragati. Now talking about the significance of this portal, क्या significance होगी, किस तरह से ये benefit करेगी, क्या advantages होंगे। So it will promote a cooperation federalism to bring together the Secretariat of Government of India and the Chief Secretaries of the state. तो ये दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं cooperative federalism का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अगर आप cooperative federalism पे आंसर लिख रहे हैं तो make sure you write this point as well. Now it is a robust system for bringing e-transparency and e-accountability in the real-time presence and the change and the key exchanges among the key stakeholders. और ये एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जहाँ पे ई-गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सकता है। Now coming to the other news, that is Indo-French joint exercises. रफाल के साथ इंडिया और फ्रेंच के बीच में एक्सरसाइज हुई है फ्रांस के साथ। So Indian Air Force and the French Air Space conducted the bilateral air exercise जिसको X Desert Night 21 के नाम से बोला जाता है। आप ये नाम जरूर याद रखें, because many times UPSC ask a direct and simple question कि कौन से कंट्री के बीच में कौन सी एक्सरसाइज की गई थी, उसका नाम क्या था, या ये एक्सरसाइज ये आपको ये नाम से भी पूछा जा सकता है, इन 2 कंट्री के बीच में की गई है। So Indian Air Force and French Air. So the exercise took place between the Air Force Station in Jodhpur from 20th to January 20th से 24 जनवरी 2021 में कंडक्ट की गई है।
ना फील्डिंग ऑफ रफाल की गई थी इसमें, जो एक्सरसाइज थी, इट्स अ यूनिक fielding of Rafale aircraft. As you know, Rafale has a speed of 900 kilometers and it is a capacity, it's one of the most advanced fighter jet in the world. तो इंडिया के पास अभी रिसेंटली इंडिया ने इंडक्ट किया है, इंडिया ने 36 के लिए प्रपोजल दी थी. वी प्रेजेंट हैव एटलीस्ट 6 रफाल और भी रफाल इंडिया में इंडिजिनसली भी डेवलप की जा रही है. तो फ्रेंच डिटैचमेंट की अगर बात करें तो ये एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो है दैट इज डिप्लॉयड इन एशिया एज अ पार्ट ऑफ देयर स्काइडोस डिप्लॉयमेंट. और रफाल फाइटर की अगर बात करें सो इंडिया एंड फ्रांस आर कैरिंग द वॉर गेम्स कंडेम्स इन द स्काई रॉस. तो ये सारे जो नाम्स हैं ये बिल्कुल आप ध्यान रखें. Anything can be important for the prelims examination. Now defense exercise between India and France. कौन कौन से ऐसे डिफेंस एक्सरसाइज हैं अपार्ट फ्रॉम द एयरफोर्स? वरुणा है नेवल एक्सरसाइज में, गरुड़ा इन द एयर एक्सरसाइज एंड शक्ति फॉर द आर्मी एक्सरसाइज. सो दीज आर सम ऑफ द डिफेंस एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. Now coming to the other news, that is India Nepal joint commission meeting. So after a long tussle between India and Nepal, बहुत सारे diplomatic relations खराब हुए थे because of the new map that has released by the Nepal. तो उसको ध्यान में रखते हुए ये relationship को कैसे ठीक किया जा सके उसके लिए एक मीटिंग की गई थी इंडिया और नेपाल के बीच में. So recently 6th India Nepal joint commission meeting was held. तो नेपाल ने अपने जो काला पानी बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको लेकर के बातें की हैं इसमें. सो दोनों साइड ने डिस्कस किया कि किस तरह से ऑपरेशंस को बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेपाल जैसे कंट्री में जहाँ पे पावर, ऑयल, गैस, वाटर रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग और टूरिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायलैटरल रिलेशनशिप में. तो आउटकम्स की अगर बात करें तो दोनों कंट्री ने एग्री किया है कि जो बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स होंगे बीरगंज और बीरत नगर में, नेपाल में जो लोकेटेड है, उसकी डेलीगेशन रिव्यू करेगी. नाउ दे वुड ऑल्सो बिल्ड द 2 कल्चरल हेरिटेज. नेपाल के जो पशुपतिनाथ रिवर फर डेवलपमेंट है और बंदरकाल गार्डन रेस्टोरेशन है पटना दरबार में, इन सारी चीज़ों को असिस्टेंस दिया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के ताकि इसमें डेवलपमेंट की जाए फॉर द कल्चरल हेरिटेज. इन नेपाल रिक्वायरमेंट फॉर द वैक्सीन टू फाइट द कोविड-19, क्योंकि अभी जिस तरह से कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया में डेवलप्ड हुई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने मिलकर इसको बनाया है. 2 कंट्री, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड शील्ड है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है. सो इसको देखते हुए नेपाल ने ये भी सोचा कि हमारे कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी तो वैक्सीन है नहीं, हमने मैन्युफैक्चर किया नहीं है. सो यहाँ पे भी रिलेशन टिप करना एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट्स थी नेपाल के लिए ताकि उनको असिस्टेंस मिल सके. और इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने अप्रूव भी कर दिया था कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड शील्ड है वो नेपाल को दी जाएगी एज अ गिफ्ट. तो अल्टीमेटली इफ़ यू सी नेपाल हैज़ बिन बेनिफिटेड विद दिस स्टॉक. और फर्दर इंडिया ने ये चाहा है कि जो हमारे इमीडिएट नेबर है उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे. ना बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर बात करें, काला पानी, लिम्पादुरवा और लीपू लेक वाले जो रीजन है उत्तराखंड में, वहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रही थी. मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, इसमें यू विल अंडरस्टैंड. सो दिस इज अ मैप, दिस इज लिम्पादुरवा, दिस इज काला पानी और ये काला पानी का रीजन है, दिस इज लीपू लेक पास, दिस इज चाइना, नेपाल और उत्तराखंड का ये रीजन है जहाँ पे एक्चुअल मैप नेपाल ने रिलीज की थी जिसकी वजह से सारी डिस्प्यूट हुई थी. नाउ मल्टी पार्टनरशिप की अगर बात की गई है, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप. सो इंडिया हैज शेयर द मल्टीलैटरल फोरम जहाँ पे BBIN की अगर बात करें, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल. उसके अलावा बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और शार्क जैसी कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू इंडिया अपने इमीडिएट नेबर के साथ इंटीग्रेट करेगी और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उनको इंप्रूव करेगी. Now coming to the other news, this is about the framework of the NBFC regulations. के लिए NBFCs में कुछ रेगुलेशन किए गए हैं, तो उसको देखते हुए किस तरह से RBI ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, we'll discuss that. So recently the Reserve Bank of India has proposed a regulatory framework for the NBFC, that is non-banking financial companies. उसमें कुछ 4-tiered structures बनाए गए हैं उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए. So it has also proposed the classification of the NBFC on the performance of the NPA के परफॉर्मेंस में. जो NPA होगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है NBFC के, उसके अकॉर्डिंगली जो 180 डेज टू 90 डेज की जो ओवर ड्यू है उसके अकॉर्डिंगली उनको करेक्टराइज किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा. Now earlier in 2020 RBI had announced a host of measures to provide liquidity support to the NBFCs, right? Now बात करें अगर NBFCs की, NBFC है क्या, क्योंकि UPSC in 2015 में NBFC के बारे में डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, and again they have repeated the question in 2017 as well.
सो यू शुड नो व्हाट इज एनबीएफसी। ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड की गई है, जो कि बिजनेस करती है फॉर लोन, एडवांसेस, एक्विजिशंस ऑफ शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज। और एनबीएफसी की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात करूं तो एनबीएफसीज जो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इट कैन नॉट इशू चेक ऑन विड्रॉन, राइट, ये चेक भी नहीं दे सकती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी की अगर बात करें, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशंस जो हैं दैट आर नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिट ऑफ द एनबीएफसीज। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज एनी क्वेश्चन ऑन द मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। नाउ एम ऑफ द फ्रेमवर्क की अगर बात करें, इस फ्रेमवर्क की क्या एम है? So the proposed framework is aimed at protecting the financial stability while ensuring the smaller NBFC continuity to enjoy light regulations and grow with ease. और proposed clarification of NBFCs में जैसे मैंने आपको बताया 4 टीयर बनाए गए। So the first tier is base layer। base layer में क्या किया जाएगा? जो सबसे कम जिसमें एनपीए की प्रॉब्लम है या फिर जो थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लोअर लेयर्स में एनबीएफसी बेस लेयर होगी। दिस लेयर वुड बी लीस्ट रेगुलेटरी इंटरवेंशन दैट इज वारंटेड। उसके ऊपर मिडिल लेयर है, दिस इज अ मिडिल लेयर नोन टू बी द एनबीएफसी मिडिल लेयर, और ये जो रेगुलेटरी रिजीम होगी दैट वुड बी स्टिकर कंपेयर टू द बेस ईयर। तो यहाँ से जो रेगुलेशन होगी वो थोड़ी टाइट होगी। एंड एडवर्स रेगुलेटरी आर्बिट्रेज की अगर बात करें, सो दे वुड एड्रेस की जो एनबीएफसी की फॉलिंग है इन दिस लेयर रिड्यूस टू सिस्टमैटिक स्पिल ऑफ ओवर द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज द लीस्ट, दिस इज अ बिट मोर स्ट्रिंजेंट। ना उसके अलावा उसके ऊपर है अपर लेयर, जहाँ पे जो एनबीएफसी है दे वुड बी हैव लार्ज पोटेंशियल ऑफ सिस्टमैटिक स्पिल ओवर की जो रिस्क ज़्यादा होंगे उनको थर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसका नाम अपर लेयर रखा गया। एंड दे हैव द एबिलिटी फॉर द फिनेंशियल स्टेबिलिटी। और सबसे लास्ट में टॉप लेयर है, दिस इज आइडियल फॉर सपोर्टेड टू बी एम्प्टी, और इट इज़ पॉसिबल कि जो सुपरविजन है जजमेंट माइट टेक सम पुश, और एनबीएफसी इज आउट ऑफ दिस लेयर बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक सिग्निफिकेंट एंड हाई रेगुलेशन सुपरविजन्स। और NBFC would also occupy the top or the upper layer as the distinct sets. So accordingly performance के accordingly NPA के जो performance होगी उसके accordingly उनको rate किया जाएगा 4 categories में। Now coming to the last news of the day, that is India Justice Report. तो ये जो report है this is being supported by Tata Trust, और ये आपके prelims के लिए बहुत ही ज़्यादा important है, because इस तरह के report जो है आप अपने essay paper में, खास करके जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी यूज़ कर पाएंगे। Now, India Justice Report was recently released, and the report was prepared by the Tata Trust in collaborations with Center for Social Justice, Common Cause, Daksh, with the Center for Legal Policies and Commonwealth Human Rights Initiatives. So these names of the institution is very important. Now, the report assesses the capacity of various states, अलग-अलग states की क्या-क्या performance है, उनको rate करती है, और justice delivery system को ध्यान में रखते हुए। सो इस रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा चीज़ बता दूँ। द रिपोर्ट एनालाइज द एक्सपेंडिचर्स, क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, वैकेंसीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ह्यूमन रिसोर्स कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, वर्कलोड, डाइवर्सिटी अक्रॉस 18 लार्ज एंड मीडियम जो साइज्ड स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 करोड़ टू 1 करोड़ के आसपास होगी। यहाँ और जो छोटे स्टेट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट में। सो ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करें, So the overall ranking is a result of the state ranking across the 4 pillar, जहाँ पे justice delivery system, judiciary, police, prison और legal aid, ये 4 important component है जिनको consideration में रखा गया है for ranking. First is judiciary, second is police, third is prison, and fourth is the legal aid provided that is required by the citizen of this country. Now talking about the state performances, Maharashtra has ranked among the top state. जो 18 स्टेट में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो महाराष्ट्र की थी। सेकेंड टाइम इन द रो, कंटिन्यूसली सेकेंड टाइम में महाराष्ट्र को नंबर 1 रैंकिंग मिली है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड तेलंगाना। और उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द जुडिशरी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम में, वो सबसे पुअर है उत्तर प्रदेश में। Now among the states, Goa remained as the top और अरुणाचल प्रदेश at the bottom. So this is, I'm talking about the India Justice Report Ranking 2020. So this was all about the report. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe APTI PLUS Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. We have a lot of initiatives which is going on our YouTube channel. There's a lot of compilations of PIB, Yojana, Kurukshetra that can help you in the part of the preparation. So do subscribe the channel for your benefit of the upcoming examination.
And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.